Hello students, we are back with the second part of the chapter 13, that is direct and indirect proportion. This is part 2. In the last lecture we have studied about what is direct proportion, what is indirect proportion, some of the illustration, and also we have solved exercise 13.1. So today we will be continuing with the further part of the chapter, that is exercise 13.2. So let's get started. But before going to the exercise, I would like to revise some of the concepts of inverse proportion because exercise 13.2 is fully based on the topic of inverse proportion. So let's quickly revise this topic. So inverse proportion occurs when one value increases and the other decreases. So for example, you have given two parameters in a question. So if one value increases and simultaneously other value decreases, then that will be the case of inverse proportion. So their equation will be, so the multiplication of both the parameters will give us the constant value. So this will be the equation representing the inverse proportion. This is what we have taught in the last lecture. Now let's quickly jump into the exercise 13.2. So the first question of exercise says that which of the following are in inverse proportion. So here are some of the cases given to us. We need to identify that which are the cases of inverse proportion and which are not. So the basic concept for the inverse proportion is when one parameter will increase and other will decrease simultaneously. So let's read the first question. The number of workers on a job and the time to complete a job. So for example, you have given a project. एक project है, उस पे दो लोग काम कर रहे हैं. So it will take more time. लेकिन वही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 8 लोग होंगे, 8 वर्कर्स होंगे, तो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. So what will happen? The number of workers will increase. So it will take lesser time to complete the job. So here one parameter is increasing and the other is decreasing. So this is the case. Yes, this is a case of inverse proportion. Second question says the time taken for a journey and the distance travelled in a uniform motion. So यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, डिस्टेंस अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, सेम स्पीड है, सो इट विल टेक सिमिलर टाइम. सो यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी ज्यादा कवर हो रहा है. बोथ द पैरामीटर्स आर इंक्रीजिंग. सो नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. Similarly, the third question is area of cultivated land and the crop harvested. अब सपोज तुम्हारे पास 2 हेक्टर ऑफ एरिया है तो उसमें कम क्रॉप होंगे कंपेयर टू अगर 4 हेक्टर एरिया होगी तो उसमें ज्यादा क्रॉप हार्वेस्ट हो सकेंगे. सो व्हाट विल हैपन इफ द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इंक्रीजेस, सो द क्रॉप हार्वेस्टिंग ऑल्सो इंक्रीजेस. एरिया बढ़ेगी सो ऑब्वियसली ज्यादा क्रॉप हार्वेस्ट कर सकेंगे. सो हियर ऑल्सो बोथ द पैरामीटर्स आर इंक्रीजिंग. सो नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. इनवर्स प्रपोर्शन की ये बेसिक क्राइटेरिया है कि एक पैरामीटर बढ़ना चाहिए और एक पैरामीटर डिक्रीज होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे कम टाइम जाएगा. सो यस, अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम इट विल टेक लेसर टाइम टू कंप्लीट द जर्नी. सो यस, दिस इज द केस ऑफ इनवर्स proportion. And the last question is the population of a country and the area of land per person. Obviously, अगर population बढ़ती है तो area कम होती जाएगी because that area will be consumed by the population for living and other purposes. So here also population जैसे बढ़ रही है, एक parameter बढ़ रहा है, तो area of the land per person is decreasing. So yes, this is also the case of inverse proportion. This is how we identify the inverse proportion and direct proportion. The next question is, in a television game show, the prize money of 1 lakh is to be divided equally among the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to be an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners.
सबसे पहले वी नीड टू चेक द टाइप ऑफ प्रपोर्शन. सो फॉर दैट वी विल टेक द रेशियो. यहाँ पे रेशियोज क्या है? सबसे पहले x1 अपॉन y1 सेज दैट 1 अपॉन 1 lakh, 1 2 3 4 5, and x2 upon y2 what it is? 2 upon 50,000. Is it 50,000? Yes, it is 50,000. So here is both the ratios are same or not? No, they are not equal. So x1 is not equal to x2 upon y2. अब ये डिवाइड वाला रेशियो किस में था? डायरेक्ट प्रपोर्शन में था. सो ये तो कंफर्म हो गया कि दिस इज नॉट द डायरेक्ट प्रपोर्शन. दिस इज नॉट द डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो अब हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की क्राइटेरिया लेके देखते हैं. सो यहाँ क्या आएगा? इनडायरेक्ट की प्रपोर्शन की क्राइटेरिया क्या है? x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2. सो क्या होगा? मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 lakh is equals to 2 multiply by 50,000. This will be equal. So यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका फाइंड करते हैं 4 का. सो यहाँ पे हम x3 y3 ले लेते हैं. तो यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड y3 वी नीड टू फाइंड. ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे वो डिवाइड में चला जाएगा. सो 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y3. सो y3 क्या हो जाएगा? 25,000. तो यहाँ पे क्या आएगा? 25,000 रुपीज. सिमिलरली y4 क्या आएगा? y4 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 लाख को हम 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 20,000. सो यहाँ पे आएगा 20,000. सिमिलरली y5 में हम क्या करेंगे? 1 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे. सो 8 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 12,500 रुपीज. सो दिस विल बी 12,500 rupees. Similarly, you can find for the 12, 10 and 12. Comment down below what you got in the answer. Moving to the next question. Rahman is making a wheel using spokes. He want to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of the consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. Now Rahman is making a wheel. This is wheel and these are the spokes. Now he want to fix the spokes in such a way that after fixing, the angle that is formed between the spokes is equal. For suppose this angle should be equal to this angle and this angle should be equal to this angle. So उसे जब वो 4 spokes डालेगा तो angle between them is 90. When the number of spokes is 6, so the angle between them is 60. So what is happening here? As the spokes are increasing, the angle between them is decreasing. So yes, this is the case of inverse proportion. Now we need to help him by completing this table. So we know that x1 y1 is equals to x2 y2 तो दिया हुआ है. We need to find the x3 y3. So x3 y3. What is x1 here? x1 is 4 and y1 is 90. While x3 is 8 and y3 we need to find, that is the angle. So 4 into 90, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. So यहाँ पे 8 हो जाएगा. So what will be the angle then? So y3 will be 45. So जब 8 spokes होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. सिमिलरली जब 10 spokes होंगे तो कितना होगा? So x1 y1 is equals to x4 y4. So y4 क्या हो जाएगा then? 4 into 90 upon 10. This cancel. So 9 4s are 36. So जब 10 spokes होंगे तो एंगल 36 होगा. So you can see as the number of spokes are increasing, the angle between them is decreasing. The last one says जब 12 spokes होंगे तब कितना होगा? So directly y5 is equals to 4 into 90 upon 12. So what it will be? It will be 30. Okay. Moving to the next question.
Same question is given, but there are some short questions here. Are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion? Now they are asking number of spokes और जो consecutive angle बन रहा है वो inverse proportion में है. Yes, it is in the inverse proportion because as the number of spokes are increasing, the angle is decreasing. So yes, this is the case of inverse proportion. So ये यहाँ पे आंसर आएगा yes. The second question is calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. अब यहाँ क्या बोला, अगर 15 spokes होते तो कितना होगा? So y6 अगर हम ले ले, so it will be 4 into 90 upon 15 spokes है, तो इधर क्या एंगल बनेगा? It will be 24 degree angle. अब यहाँ पे थर्ड उल्टा पूछा है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर इज 40. अब इधर एंगल दिया है, हमें स्पोक्स फाइंड करने हैं. सो कैसे फाइंड करेंगे? x1 y1 इज इक्वल्स टू x7 y7. अब यहाँ पे x हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स है तो 4, y हमारा एंगल है तो 90. अब यहाँ पे क्या दिया है? एंगल दिया है, मतलब हमें y दिया है, x हमें फाइंड करना है. एंगल कितना दिया है? 40. ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो 4 into 90 अपॉन 40 x7. सो कितने स्पोक्स होंगे? देयर विल बी 9 स्पोक्स बिकॉज दिस विल बी कैंसल, 4 कैंसल, सो इट विल बी 9 स्पोक्स. सो जब 40 डिग्री होगा तो कितने स्पोक्स प्रेजेंट होंगे? 9 स्पोक्स प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth question says that if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? अब यहाँ क्या बोला है कि जब number of children 24 थे तो एक बच्चे को कितनी स्वीट मिल रही थी? 5 स्वीट्स मिल रही थी. तो अब क्या किया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, मतलब 24 माइनस 4 कितना होगा? 20. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं? 20 हो गए. डोंट डू द मिस्टेक हियर बाय राइटिंग 4 स्टूडेंट्स हो गए. नहीं, यहाँ पे क्या बोला है? रिड्यूस्ड बाय 4, कि 4 स्टूडेंट्स कम हो गए. ऐसा नहीं बोला है कि स्टूडेंट्स 4 हो गए, रिड्यूस्ड बाय 4. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 24 ऑलरेडी थे, उसमें से 4 माइनस हो गए, तो कितने बच्चे बचे? अब 20 स्टूडेंट्स आर देयर. सो कितनी स्वीट्स एक बच्चे को मिलेगी? तो फॉर सपोज दिस इज वन पैरामीटर एंड दिस इज अनदर पैरामीटर. सो हाउ वी विल कैलकुलेट x1 y1 is equals to x2 y2. What is x1? 24 into 5, x2 20 into y2. यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा. 5 4 जा एंड 4 6 जा. सो कितने स्टूडेंट्स को स्वीट्स कितनी मिलेगी? 6 स्वीट्स ईच स्टूडेंट विल गेट. ओके. Fifth question says that a farmer has enough food to feed 20 animals in the cattle for 6 days. एक फार्मर के पास enough food है, 20 animals को वो 6 दिन तक खाना खिला सकता है. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब पूछ रहे हैं कि कितना दिन खाना बचेगा अगर उसके पास 10 और एनिमल्स होते. तो यहाँ पे क्या बोला है कि पहले नंबर ऑफ कैटल्स कितने थे? 20 थे, तो खाना 6 दिन चलेगा, डेज. लेकिन अगर 10 मोर कैटल्स हो जाते, मतलब 20 प्लस 10 कितने? 30 हो जाते हैं, तो कितने दिन खाना चलेगा? अगेन डोंट डू मिस्टेक हियर बाय राइटिंग 10 हियर. यहाँ 10 एनिमल्स नहीं बोल रहे, 10 मोर एनिमल्स. सो प्रीवियस में हमें 10 ऐड करने हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 एनिमल्स. सो फॉर सपोज दिस इज x1 एंड दिस इज y1. अब ऑब्वियसली अगर एनिमल्स बढ़ जा रहे हैं तो खाना कम दिन चलेगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटल्स बढ़ रहे हैं तो खाना
कम दिन चल रहा है. वन पैरामीटर इज इंक्रीजिंग, अदर इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. सो वी विल टेक द मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट x2 y2. x1 y1 कितना है 20 इंटू 6, x2 कितना है 30 एंड इंटू y2 वी नीड टू फाइंड. सो 20 इंटू 6 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू y2. 0 0 कैंसल, 3 2 जा. सो y2 कितना आएगा 4 days खाना चलेगा. ओके. The next question is, a contractor estimates that 3 person could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 person instead of 3, how long they would take to complete the job? अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बोला है कि यहाँ पे 3 person एक काम कर रहे हैं जसमिंदर के घर पे, तो 3 person काम कर रहे हैं तो 4 days लग रहे हैं. सॉरी, यहाँ पे person एंड यहाँ पे days. सो 3 persons काम कर रहे हैं तो 4 days लग रहे हैं. तो अगर 4 persons काम करेंगे तो ऑब्वियसली कम दिन लगेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन जैसे बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं. सो ऑब्वियसली इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2. x1 क्या है 3 इंटू 4, x2 4 इंटू y2. सो 3 इंटू 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y2. 4 4 cancel. So how many days it will take? It will take 3 days instead of 4 days. Okay. The next question says that a batch of bottles were packed in a 25 boxes with 12 bottles in each box. अब एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स आ रही है 12 बॉटल्स आ रही है. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes? अब यहाँ पे बोला है कि यही बॉक्स में अगर हम 20 बॉटल्स डालते हैं तो कितने बॉक्सेस बनेंगे. तो यहाँ क्या है, सबसे पहला फर्स्ट पैरामीटर है बॉक्स एंड देन देयर इज बॉटल्स. तो अगर 25 बॉक्सेस है तो हमको 12 बॉटल्स एक में डालनी है. लेकिन अगर 20 बॉटल्स हम एक में डालते हैं तो बॉक्सेस ऑब्वियसली कम चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटल्स बढ़ रही है तो बॉक्सेस कम चाहिए. सो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2. x1 क्या है 25 इंटू 12 इज इक्वल्स टू x2 वी नीड टू फाइंड एंड y2 इज 20. यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. सो 25 इंटू 12 अपॉन 20 is equals to x2. This will be 5 5s, 5 4s. This will be 4 3s. So x2 is equals to 5 3s, 15 box हमें चाहिए instead of 25 box. Okay. The next question is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? अब एक फैक्ट्री को कितनी मशीन्स चाहिए 42 मशीन्स चाहिए. कितने दिन में काम करने के लिए 63. लेकिन अगर डेज 54 हो जाते हैं तो कितनी मशीन्स चाहिए होगी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2. x1 क्या है 42 इंटू 63, x2 वी नीड टू फाइंड, y2 इज 54. ये डिवाइड में आएगा. 42 इंटू 63 अपॉन 54 इज इक्वल्स टू x2. सो ये 7 6 ये 6 9 ये 6 7 सॉरी 7 9 सो 9 9 कट, ये 6 6 कट. तो कितने मशीन्स चाहिए, सॉरी यहाँ पे भी 7 आएगा. सो 7 7 49 machines they require. The next question says that a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h. एक कार 60 km/h पे चल रही है और कितना टाइम ले रही है
2 आवर्स ले रही है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम 2 आवर्स है। तो जब कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली कम टाइम जाएगा। तो कितना टाइम जाएगा? सो x1 y1 x2 y2, x1 is 60 and y1 is 2, x2 is 80 and y2 फाइंड करना है। सो 60 इंटू 2 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू y2, 0 0 कट, 2 4 जा, सो y2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3/2 का रेशियो बना, सो दैट विल बी y2 इज इक्वल्स टू 1.5 आवर्स लगेंगे। The next question says that 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? अब क्या बोल रहे हैं कि जब पर्सन 3 थे, 2 थे, सॉरी, पर्सन पहले कितने थे? 2 पर्सन्स थे, तो कितना डेज लग रहे थे? 3 दिन लग रहे थे। लेकिन वन ऑफ द पर्सन फेल इल, सो अब कितने पर्सन बचे? एक ही पर्सन बचा, तो कितने दिन लगेंगे? ऑब्वियसली अब ज्यादा दिन लगेंगे। सो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू y2, सो y2 इज इक्वल्स टू 6 days इट विल टेक। ऑब्वियसली डबल टाइम लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन अ 1 day? अब एक दिन में कितने पर्सन, क्या बोला है? हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिक्स द विंडो इन 1 day? अब अगर दिन 1 है, एक ही दिन है, तो कितने पर्सन लगेंगे? सो उल्टा, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकेंड केस। So 2 into 3 is equals to x2 into 1. So obviously कितने persons चाहिए? 6 persons चाहिए। अगर एक ही दिन है तो कितने पर्सन चाहिए? 6 persons चाहिए। The last question says that a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? अब एक स्कूल है जिसमें 8 पीरियड्स होते हैं, तो 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता है। लेकिन अगर लेक्चर्स 9 हो जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली टाइम कम हो जाएगा। सो यहाँ पे पीरियड्स बढ़ रहे हैं एंड टाइम कम हो रहा है। सो अगेन इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन, x1 y1 x2 y2, 8 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 9 इंटू y2, सो y2 क्या हो जाएगा? 8 इंटू 45 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू y2, 9 5 जा, सो 8 5 जा कितना होगा? 40 मिनट्स एक लेक्चर होगा। सो दैट्स इट अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन। थैंक यू। इफ एनी डाउट you can comment down below. Do solve the illustration and practice as much as possible, and by practicing you will be pro in this. Thank you.